जपहीन तपहीन कुलहीन क्रमहीन नामक स्वामी ते उतरै। बेशुमार अथाह गणत अतुल ज्यों बुलावूं त्यों नानक दास बोलै। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਤੇਰਾ ਆਸਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਗਮ ਭਾਵ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਗਮ। ਇਹ 3 ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਮਾਗਮ। ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਸਹਾਈ ਚੈਨਲ, ਹਰਜਸ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਚੈਨਲਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਸਖੀ, ਸਨੇਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਚਰ ਪੂਚਰ ਭਾਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੋਭਾ ਖੇਚਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਠੁਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਠੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਲੜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰੀਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 61 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ 10 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰਾ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ ਵਰਣ, ਭੇਦ, ਊਚ ਨੀਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 1270 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ 1350 ਈਸਵੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਦੇ 15 ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ 15 ਦੇ 15 ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਨੀ ਜਾਨ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 61 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 18 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲ ਜਾਤ ਵਰਣ ਭੇਦ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਗਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਸੋਚ ਦਬਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੀਂਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1604 ਈਸਵੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਰਿਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਡਾਂਗੂ ਭਗਤ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਡਾਂਗ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਾ ਨਾ ਅਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਪਰਵਾਦ ਸੋਚ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕੁੱਲ 12 ਮੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ 11 ਦੇ 11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਰੇ 11 ਦੇ 11 ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਲ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਦੇਹਰਾ, ਜਿਸ ਦੇਹਰੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗਏ।
और जाके उन्होंने वो देखना चाहया रंग कि मैं भी दीदार करा ते मैं भी बैठा ते मैं भी अंदर कीर्तन करा, क्योंकि कीर्तनीय भगत सन भगत नामदेव जी। खड़तालां वजाउंदे सन ते बीठुल बीठुल ते कीर्तन गाउंदे सन। गायन शैली उन्हां दी दखणी गायन शैली भगत नामदेव जी दी अज भी मौजूद है। अज भी दखण दे विच भगत नामदेव जी नूं मन्नण वाले वो भगत नामदेव जी दी शैली तो ही वो कीर्तन ते खड़तालां वजा के गाउंदे ने। उन्होंने जद गाउण दा यतन कीता ते उस वेले भी उच्च सोच ने जात पात दी मलीनता दे विच गर्क होए लोकां ने भगत नामदेव जी नूं चक के मंदिर तो बाहर सुटिया ते बचन कीता, हस्त खिलत तेरे देहोरे आया भगत करतनामा पकड़ उठाया। ते उथे उलामा रब नूं दिता, किसी होर नूं नहीं किया। हीनरी जात मेरी जादम राया छिपै कै जन्म काहे को आया। जे रब तू मेरे तो नाम जपाउणा सी, क्योंकि नाम कोई अपनी हिम्मत नाल नहीं जप सकदा। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का यह उपदेश भी है तो यह फैसला भी है। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। कोई जप सकदा होए ते जप ले, पर अपने कर्म नाल असी प्रभु दे नाम तो विछड़ सकते हैं। जे अपने कर्म नाल मिलन की गत करिए तो किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। अपने जतना नाल विछड़े पे हैं, पर मिलांगे प्रभु की कृपा तो, कृपा दे नाल ही, कृपा तो बिना मिल नहीं सकते। इसी गल नूं भगत नामदेव जी ने कहा हीनरी। हीनरी का मतलब हीन, नीवी जात। जे रब तू संसार दे विच जातां पातां दा रोला पाउणा सी लोकां दे विच, पर यह रोला मनु सिमरती दे विचों पैदा होया कि जे ऊंच ते नीच जात दा रोला पाउणा सी, फिर मैनू क्यों इस रूप दे विच तू इस संसार च भेजिया, फिर मैनू भी ब्राह्मण बना के भेज दे। पर रब दी कोई होर खेड़ सी कि रब ने इस संसार दे विच उस झूठ, क्योंकि ब्राह्मण वो नहीं है जिहड़ी उच्ची कुल दे विच पैदा होया। गुरु ग्रंथ साहब जी विच ब्राह्मण दा जिक्र कीता है कि जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। ये ब्राह्मण वो नहीं जिहड़ा जात कुल दा मान करदा है। ब्राह्मण वो है जो सो ब्राह्मण जो बिंदा ब्रह्म। किरत करके कोई इत्थे ब्राह्मण है ते किरत करके शूदर है। और असीं पढ़दे हां नीवीं जात वो है खसम विसारै है ते, सारे पढ़ो जी, खसम विसारै ते नानक नावै। जेड़ा खसम नूं विसार दे वो सब तो नीवां है। मुकदी गल यह है कि जिन्हों खसम चेते है वो सब तो उच्चा है। फिर ओदी जात नहीं देखी जाती, वो ये नहीं देखा जाता। गल मुकदी यह है, चमड़ी भावें काली है ते भावें गोरी है, भावें गरीब दे घर जम्मिया ते भावें 4 टकियां वाले पैसे अमीर दे घर जम्मिया। जे किसी दे हिरदे विच प्रभु दा नाम टिक गया, गुरु नानक साहब ने उहदे अगे सीस झुकाया। गुरु नानक साहब ने आप कहा कि मैं लैण आया ये दात, जिहड़ी दात प्रभु दे नाम दे विच तुहाडे अंदर आई। हीनरी जात मेरी जादम राया छिपे के जन्म काहे को आया। ले कमली चलियो पलटाए देहरे पाछे बैठा। आए मैनू चक के बाहर सुटिया ते मैं उत्थे बह गया जिथे मंदिर दा पिछला पासा सी। ते सच ये होया कि जेड़े रब नूं चेते करन आउंदे सन, रब दा मूंह उन्हां वाले पासे नहीं है। जेड़े रब नूं वेखण आए, रब दा मूंह उस पासे है जेड़े अंदरों रब नूं वेख रहे हैं, जिन्हां ने अंदरों सच्ची मुच्ची प्रभु नूं ध्याया। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहोरा फिरै। दूसरा शब्द असीं ये कल भी विचारिया सी कि असीं संसार विच ये कहंदे आ कि रब तू बस इन्नी कृपा करी कि मैनू तू ना विसरे, कि मैं तेनू चेते रखा। पर भगत नामदेव जी ते उल्टी गंग बहा रहे। बंदा ये कहंदा है, आम इंसान ये कहंदा कि रब मैनू तेरा याद तेरा चेता रहे, मैं विसर ना जावां तेनू। पर भगत नामदेव कहंदे मेरा विसरना छड्ड, तू मैनू ना विसरी वाहिगुरू। तू ना किथे अपने चेते विचों नामदेव दा चेता भुला दी। मोको तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसारे। क्योंकि भगत नामदेव कहंदे बंदे दा सुभाव नित भुलण दा है। इस करके वाहिगुरू तू ही मैनू चेते रख, तू मेरा चेते रख ली। मोको तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसारे। रामैया आलावंती ए भ्रम जो है। जो है दा मतलब है अहंकार। आला कहंदे उच्ची जात वाले, 4 टकियां दमड़ियां वाले, ते अपने आप नूं जात दा मान अहंकार करके कि असीं फलानी कुल जात विच पैदा होए हां ते सानू सब तो ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। गुरु नानक साहब कहंदे दुनिया दे विच इस गल दी लकीर तुसीं बिल्कुल ही कट दो कि अज तो बाद किसी उच्ची जात वाले नूं या जात पात दा इत्थे मान है। बिल्कुल जिहदे अंदर सच धर्म है, रब दी दरगाह दे विच भी उहनूं सत्कार है ते गुरु नानक साहब दे घर दे विच भी उहनूं सत्कार है। जो रब दी दरगाह दा नेम है वही गुरु नानक साहब दे घर दा नेम है।
ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲੀਨਤਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਓ ਚੌਂਕੁੰਠ ਮਾਨੈ। ਉਹ ਚੌਕੁੰਠਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਢੇਡ ਢੇਡ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਹੇ, ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹਾ ਕਹਿ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਹੂ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਮ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਕੋ ਜਪੀਐ ਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਜਿਆ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਿਖੀਤਾ। ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਜਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆੜ ਕੋ ਤੇ ਗਨੀ ਧਨੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਏ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਿਖੀਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂੰਖਾਰ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਡਰਪੋਕ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘਵਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਮੰਨਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀਠੋਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ ਆਲਾਵੰਤੀ। ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੋਪਿਲਾ। ਕੋਪਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੂਦ ਸ਼ੂਦ ਕਰ ਮਾਰ ਉਠਾਇਓ, ਕਾਹ ਕਰੇ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਇਲਾ। ਰੱਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਡਿਆ ਮੋਕੋ ਢੇਡ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਢੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢੇਡ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਗਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਢੇਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਨੀਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੰਡਿਆ ਮੋਕੋ ਢੇਡ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ। ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਛੌਂਡੀ ਹੋਏ ਲਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪੈਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਪੰਡਿयन ਕੋ ਪਿਛਵਾਰ ਲਾ। ਬਸ ਇਹ ਦਇਆਲ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛਪਰੀ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਛੱਤ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਤਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਧਨ ਨਾ ਬਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਛਪਰੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਛਪਰੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਛਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਚਾਉ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ
रामकार, ये वो छपरी की गल है, ये वो रहमत है जिस रहमत दे सदके जाम गुरु होए वल धन है क्या गारव दीजै, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै, लखां बाहां भी वाल विंगा नहीं कर सकदी। ये वो रहमत है जिस रहमत नूं प्रभु की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच असीं बारंबार कई कई रूप दे विच पढ़दे हां कि सतगुर होए दयाल तां शरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल ना कबहू झूरी है, सतगुर होए दयाल तां जम का डर कहा, सतगुर होए दयाल तां सद ही सुख देहा। ये वो रहमत है। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा कापै छान छबाई हो, तो पै दुगनी मजूरी देहो मोको बेडी देहो बताई हो। बेडी का मतलब है मजदूर मिस्त्री। ये वो गल है कि भाव एक कली गुआंढन बाहर की ये नहीं पुछदी कि घर का लैंटर किवें पवाया, ये रातों रात छपरी किवें पवा ली, कल तो उड़ गई सी, पर असल दे विच है अंदर दी छपरी, ये अंदर दा आधार है। नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नाल, कि अंदर ये टेक किवें आई, ये आसरा किवें आया रब दा। रातों रात नामदेव, जिस नामदेव नूं छींबा छींबा आके इस धरती दे विपर, इस धरती दे उच्च जात दे ब्राह्मण ढेड़ कहंदे सन, मंदिर तो चक के बाहर सुटदे सन, अज नामदेव दी शोभा इन्नी किवें हो गई। कहंदे तौ पे दुगनी मजूरी देहो मैं दुगना दवांगी, पर गुरबाणी कहंदी है कंचन स्यों पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। ये कोई तोल नहीं दिता जा सकता, ये कोई बाहर की दौलत नहीं। इस गल नूं बेडी प्रीत मजूरी मांगा, ये तो प्रीत है जिन्हों भगत रविदास जी ने भी आख्या, मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बाणी सुजस पूर राखो, मन सो मद कर करो, चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। ये वो प्रीत है जिन्हों भगत कहते जी डर लगता है, दुनिया का सब कुछ जाता रहे, बस अंदर की प्रीत नहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जिंद दे के बेडी प्रीत मजूरी मांगे दा सच दसिया। ये वो छान है जिहड़ी अंदर दा आसरा है, जिस आसरे नूं गुरु अर्जुन साहब जी कहते प्रथमे मता जे पतरी चलावूं, द्वितीय मता दोह मानक पहुंचावूं, तृतीय मता कुछ करूं उपाया मैं सब के छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। छपरी छत का मतलब की होंदा आसरा, ते भगत नामदेव जी नूं दुनिया का थोड़ी आसरा है, एक आसरा है पार ब्रह्म परमेश्वर का। ते दुनिया के लोग गुआंढन भाव सारे पुछदे ने आसरा बनिया किवें, तू मैनू भी दस, मैनू भी आसरा दवा, मैं दुगना दवांगी। पर यह दुगना दे के नहीं, ये प्रीत नाल है, ये प्रेम नाल है। ते उस प्रेम का जिक्र भगत नामदेव जी ने निर्गुण सरगुण दोनों भगतियां विचों दसिया। भगत नामदेव जी के शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच सरगुण भगती दे भी ने, पर सरगुण भगती दे कल्ले शब्द लैके ये भुलेखा ना खा जाना कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच भगत नामदेव जी सरगुण भगत ने जां इष्ट दी पूजा करते हैं, बल्कि सरगुण भगती तो निर्गुण भगती वाल किवें जुड़ तुरे ने। इस करके गुरु नानक साहब ते गुरु अर्जुन साहब ने सरगुण निर्गुण दोनों पाते, दोनों शब्द पाते, जिन्हों असी गुरु अर्जुन साहब जी दी सुखमनी साहब च पढ़ते हैं, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं जे सरगुण भगती पाती तो किसी इष्ट का नाम लै लिया तो यदा मतलब असी किसी इष्ट के पुजारी हो गए, तो यदा यह भी मतलब नहीं है कि असी किसी इष्ट की निंदा करिए। इस धरती ते सारे देवते, इस धरती ते सारे पैगंबर, इस धरती ते जिन्ने भी धर्म आए ने सारे पूजनीक ते सारे सत्कारयोग ने। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि असी सब नूं झुक के नमस्कार करते हाँ तो साडे सारे प्यो हो गए, प्यो साडा इक्को ही रहिंदा है, खसम साडा इक्को ही रहिंदा है, पर सत्कार साडे लई है, सारियां लई है। जे सरगुण भगती का जिक्र करिए तो भगत नामदेव जी ने जिक्र किया, धन धन ओ राम बेन बाजे, मधुर मधुर तुन अनहद गाजे, धन धन तू माता देव की जय ग्रह रमैया कवलापति, धन धन बन खंड वृंदा बना जे खेला श्री नारायणा, बेन बजाए गोदन चरै नामे का स्वामी आनंद करे। शुरुआत उन्हां दी बीठुल भगती तो हुई, क्यों इस धरती दी संस्कृति ते उन्हां दे परिवार दा पिछोकड़ बीठुल दा पुजारी सी। इस करके भगत नामदेव जी दे जीवन दी शुरुआत सरगुण भगती तो हुई, और इसी सरगुण भगती दे विच भगत नामदेव जी ने अपने पिता दे कहण ते बीठुल नूं दुध पिलाउण दी जिद भी की। और ਇਹਦਾ जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच है, दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए, नहीं तो घर को बाप रिसाए। जद बिल्कुल जिद फड़ के बह गए ना कि दूध पीना पेगा, पर भोले भाए जिहड़ी अवस्था सी, नहीं पता कि यह दूध पिलाया नहीं सी जांदा, बस भोग ला के ते घर दे कारज ते होर गृहस्थ कीती जांदी है।
पर भोले पाए बैठ के बिल्कुल ऐ जिद करके कि दुध पीना ही पएगा श्री कृष्ण जी। विठुल विठुल क्यों किया गया? उस धरती ते कृष्ण नदी बहती है ते उस धरती दे लोग खास करके जेड़े ये सारे नरसी ब्राह्मणी ते उस 17 जिला पैंदा। 17 जिला दे जिन्ने भी कबीले ने, जिन्ने भी उत्थे कुल जाति दे लोग रहिंदे ने, वो सारे विष्णु नूं ध्याउंदे ने, क्योंकि उत्थे जेड़ा एक मंदिर सी कृष्ण नदी दे कंढे, उत्थे मन्निया जांदा सी कि भगतां ने बंदगी कीती है ते उत्थे श्री कृष्ण जी इट दे उत्ते आके बैठ के ते अपने भगतां दी पैज रख के गए सी। इस करके इट नूं विठुल किया गया। विष्ठुल तो यह लफ्ज बनया है ते उस सारे 17 जिले दे लोग विष्णुल दे ही पुजारी बने। पर भगत नामदेव जी सरगुण तो निर्गुण किवें होए, इहदा जिक्र भगत नामदेव जी ने अपनी बाणी विच, भाव अपने शब्दां विच कीता जो गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच मौजूद है। भगत नामदेव जी दे इन्हां शब्दां तो किथे भुलेखा ना पए, इस करके मैं एक शब्द होर जिहड़ा तुसीं सरवण कर रहे सी, हल्ले यारां, हल्ले यारां, ये 11 है, बिंदी ला के, बिंदी लगी हुई है इहदे उत्ते बकायदा गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी शब्दां ते 11 उत्ते बिंदी पढ़ोगे तुसीं, अनुनासिक धुनी नाल ही पढ़ना। हल्ले यारा खुशखबरी हों, बल बल जाऊं हों, बल बल जाऊं, नीकी तेरी बीगारी, आले तेरा नाउ कुजा, आमद कुजा, रफ्ती कुजा, मैं रवि। कित्थों आया है, कित्थों जाना है ते कित्थे समा जाना है? ये सीधा सरगुण ते निर्गुण भगती दा उदाहरण है। ये सीधा उदाहरण है। ते जे कल्ले भगत नामदेव जी सरगुण भगत होंदे ते कदी ये ना कहंदे कुजा आमद कुजा रफ्ती कुजा मैं रफी, कि रब कित्थों आया कित्थे गया, फिर ते कहंदे वो इत्थे ही है। ये भी कहता द्वारका नगरी रास बिगोई, कल्ला कोई कहे कि श्री कृष्ण जी ने द्वारका नगरी दे विच ही रास कीती, ते भगत नामदेव जी कहंदे उस रब ने बहुत इष्ट बनाए, बड़े सारा कुछ बनाया उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने। श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, शिव जी सब ओदे बनाए हुए ने, पर सच यह है कि ओदे वर्गा कोई भी नहीं, वो सब कुछ बनाने वाला यह है कि। और इसी गल नूं दोनों रूप दे विच किया कि एक चंदी हजार आलम एकल खाना, हम चीनी पातशाह सावले बरना, ओदे पहला जिक्र करके गए ने भगत जी। भगत नामदेव जी कहंदे कि ना वो द्वारका दे विच है ते ना वो मुगल भाव कि वो काबे वाला है। ये कौन कह सकदा जिहदे अंदर हिम्मत हो, जिहदे सिंह बिलाई होए गए हो, तृणमेर दिखैता दी जिहड़ी अवस्था रखदा होया, ये है ये हम चीनी पातशाह साहब बरना दी अवस्था है कि सोहना रब है ते सब दे विच वसदा। भगत नामदेव जी नूं जिस वेले भगत त्रिलोचन का कल जिक्र किया, 3 भगत होर ने जिहड़े मराठी भगत ने, परमानंद जी, सैन ते त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच भगत नामदेव जी दे नाल एक तो वध वारी कई वारी आया। एक शब्द असीं पढ़दे हां कि फिर भगत जी नूं ये पुछिए कि भगत जी फिर बंदगी किवें करिए, तुहाडी बंदगी किवें करिए? ते त्रिलोचन जी भी सुन के आए सी भगत नामदेव जी नूं कि इन्ने निडर ते निरभाऊ निर्भै निर्भाऊ निर्वैर दी अवस्था दे मालक ने, ते विठुल विठुल गाउंदे ने, खड़तालां गितारा वजाउंदे ते गांदे गांदे गश खा के डिग जांदे आ। त्रिलोचन कहंदा मैं भी वेख के आवां ते मैं भी सिखां। ते जिस दिन त्रिलोचन जी नामदेव दे घर पहुंचे ते कहंदे सारा दिन सवेर तो लैके नामदेव जी कदी कपड़े नूं सीप रहे ने, कदी उन्हां नूं भिओं के रंगीच रहे ने, कदी उत्ते छापे ला रहे ने। शाम हो गई, अक गए भगत त्रिलोचन जी ते उठ के जान लगे मुड्ढा मार के। ते नामदेव जी कहंदे की होया मित्र, कित्थे चले आए? कहंदे सुन के ते मैं बहुत कुछ आया सी, पर मैं वेख के ते ये वेख लिया कि रब दी बंदगी कित्थे नहीं, सीधा सिरा ही लाता तुसीं माया दा, मतलब नेरी माया। माया दा एक गृहस्थी बंदा ते नामदेव कहंदा मैं ऐलानियां कहना त्रिलोचन कोई फर्क नहीं है। नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत, ये भगत कबीर जी दे श्लोकां विचों श्लोक है। भगत कबीर जी सिजदा कीता है भगती नूं, भगत नामदेव जी नूं, भगत नामदेव जी दी भगती दा। कि त्रिलोचन जी कहंदे मैं ते सुन के आया सी, सारा दिन कीर्तन ते भगती विच जुड़िया है नामदेव, और इन्नी टेक और इन्नी सुरत जुड़ी है कि दुनिया दे विच दुनियादारां दी भी फिक्र नहीं। पर मैं ये कहना लिखती तौर ते ऐलानिया तौर ते नामा माया मोहिया, नामदेव कोई रब दा भगत नहीं, माया दा पूरा कहंदे डेरा पसारिया होया, माया दा खलारा पाया होया। जिवें आम बंदा गृहस्थ बंदा माया दे विच फसिया ते रब भुलिया बैठा है, ते नामदेव जी मैनू किथे रब नहीं दसिया। नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत, काए छीपै छायलो राम ना लावो चीत।
कहते सारे दिन छीपे का मतलब आ छापी लाई फिरदे हो सारा दिन गिलाफां नूं, कदी रजाइयां दे, कदी तलाइयां दे, कदी सराणियां दे, काम ही काम है। रब की भगती कित्थे है? ते भगत नामदेव कहंदे हुण मैनूं सरगुण तो निर्गुण भगती की रीत पता लग गई। कहंदे वो किहड़ी भगती है? ते नामदेव जी त्रिलोचन नूं कहंदे फिर बैठ मैं तैनूं दस्सां निर्गुण भगती की है। इस निर्गुण भगती दे लई कोई बाहर दा अडंबर नहीं चाहिए, इस निर्गुण भगती लई कोई बाहर दे इशनान नहीं चाहिए, इस निर्गुण भगती लई खास करके किसी जात कुल दा जन्म दा अधिकार नहीं चाहिए, इस निर्गुण भगती लई कोई दान पुण्य नहीं चाहिए, इस निर्गुण भगती लई कोई अश्वमेघ या होर यज्ञ नहीं चाहिए। ते इस निर्गुण भगती लई खास करके कि बैठ के खड़तालां वजाउणियां ते कीर्तन कल्ला नहीं चाहिए। ये निर्गुण भगती नामा कहत लोचना मुक्ते राम समाल हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। ते भगत नामदेव नूं फिर पुछया, त्रिलोचन ने गल नहीं समझ आई ते भगत नामदेव जी ने पूरा शब्द उचारिया। आनी ले कागद काटी ले गुडी आकाश मध्य भरमियले पंच जनास्यों बाद बतौआ चीत सो डोरी राखी है मन राम लामा बेदी अले जैसे कनक कलाचित मांडी अले। आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त विनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले। मंदिर एक द्वार दस जाकै गऊ चरावन छाड़ी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछड़ा राखी अले। कहत नाम देव सुनो त्रिलोचन बालक पालन पौड़ी अले अंतर बाहर काज विरोधी चीत सो बालक राखी अले। ਇਹਦੇ अर्थ कीते फिर भगत नामदेव जी ने। कहते जिवें एक बच्चा गुड्डी पतंग उड़ाउंदा है, असीं 15 अगस्त उड़ाउंदे आ इत्थे साडी दिल्ली च, पंजाब जाओ तो उत्थे बसंत पंचमी पतंगां उड़दियां ने। कहते जिवें बच्चा धागा पा के ते गुड्डी उड़ाउंदा है, जद गुड्डी आसमान चढ़ जाती है हवा च फिर उन्होंने वेखण की लोड़ नहीं पैंदी, नाल अपने 5 मित्रां नाल गल्लां बातां भी करदा है ते थोड़ा थोड़ा तुनका भी मार दिंदा। इवें दुनियादार लोगो ये कदी ना कहो कि साडे कोल रब दी भगती करन दा समां नहीं है। जिहड़ी रब दी भगती तो टुट गया वो निफल है, निखद है। पर दुनिया दे काम काज करदियां गृहस्थ करदियां गुरु का सिख भगती करे, वाहिगुरू बोले, जिवें गुड्डी उड़दी है। पंच जनास्यों बात बतौआ, 5 चोरां दे नाल संबंध भी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नाल। चीत सो डोरी राखी अले ते गुरु के सिख दी सुरत शब्द विच है। इवें है कि मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले। जिवें सुनियारी दी दुकान ते कोई गाहक जाए ना ते सुनियारा उस गाहक ते दा उत्तों लैके थल्ले तक पढ़ लैंदा कि इस सवाणी ने कन च की पाया। उन्होंने वेंदियां पता लग जाता किन्ना तोला पाया ते की इस गाहक की कीमत होएगी अगे खरीदण दी, सोना किन्नी कई दी औकात है, की कुछ। ते भावें 20 भी गाहक आ जाण ना ते सुनियारे नूं ये पता हुंदा है कि इस काउंटर च मेरी 20 मुंदरियां सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 20 ਮੋਤੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਨ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਾਏ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਬਾਹਰ ਸੂਤ ਸਗਲ ਸਿਓ ਮੋਲਾ ਅਲਿਪਤ ਰਹੂੰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕੌਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਕੀ ਬਾਤ सगल स्यों करता जी संग प्रभ अपना तरता। जैसे कनक कला चित मांडी ले आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस विनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी ले। पुराने समय च गागरां भरन मटके घड़े सिर ते रख के जांदियां सन सवाणियां खूह चों भरन। कई कई मील दूर खूह हुंदे सी घरां तो, पर घड़ा भर के जद लियाउणा ते मजाल है पानी ते घड़ा डिग जाए ते सारियां इकट्ठियां होंदियां पिंड दियां वापस आंदियां गल्लां करदियां हसदियां खेडदियां, पर ध्यान गागर च हुंदा किथे गागर ये पानी गिर ना जाए। सारा दिन इस पानी दे नाल घर दे कारज करने। इसी तरह मंदिर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाड़िए ले कि जिस तरह गां ते गां दा वच्छा इक्को ही घर होए इक्को ही थां होए ते जिहदे 10 दरवाजे होण, गां नूं किसी पासे किसी दरवाजे तो कढ दो ते बछड़े नूं 9वें दरवाजे तो किसी होर तो कढ दो, जिन्नी मर्जी दूर लै जाओ गां अपने बच्चे कोल पहुंच जाएगी। मंदिर एक द्वार 10 जाके ये अंदर दे अर्थ आ है 10 द्वार 10म तक सुरत पहुँचानी है। गऊ चरावन छाड़ी ले सुरत 9 दरवाजियां च है, पर सच ये है कि गुरु के सिख दी सुरत गुरु दे शब्द विच होए। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन वजाया वजाया वाजा पौन 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारा लाए भावनी एक ना 10वां द्वार दिखाया वाली अवस्था गुरु दे सिख दे अंदर होए।
कि 5 कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछड़ा राखी ले। कहत नाम दे सुनो त्रिलोचन बालक पालन पौड़ी वाले। कोई ये विकार वाली गल नहीं। पहला पौड़ी वाले भाव उच्चे उच्चे मंजे होंदे सन, मंजे दे पाए दे नाल चुनियां ते चदरां बन के एक पंघूड़ा जा बना दिंदियां सन सवाणियां, निक्के बच्चे नूं उहदे विच पा दिंदियां सन ते सारा कामकाज ते माड़ा जा आके हिला जाना ते फिर कामकाज अद्धा पौना घंटा दूर कदी वेड़ियां नूं कदी किसी पासे तुर जाना, कदी उत्थे करना कदी किथे करना काम। घर वड्डे होंदे सन, कदी उत्ते कदी थल्ले। पर जिस वेले बच्चे नूं भुख लगदी सी ना, सुत्तियां नूं पंघूड़े चों कढ के जगा के ते शीर अमृत मां पिलाउंदी है। ते त्रिलोचन जी पुछदे नामदेव जी बच्चा ते रोया नहीं, बिना रोए मां नूं किवें पता लग्या कि उहनूं भुख लगी है? नामदेव जी कहंदे गल ही यह है कि दुनिया नूं लगदा बच्चा रोएगा ते उहनूं भुख लगी है, पर मां नूं अंदर पहले ही पता लग जांदा है कि सुत्ते बच्चे नूं भी भुख लगी है। जिस तरह सुत्ते बच्चे दी भुख दी चीस मां दे अंदर सीने च पैंदी है, इवें भगत दे अंदर प्रभु दी भगती दी चीस पैंदी है, भावें वो सारा दिन छीपे ही लाउंदा रहे, भावें वो छापे ही लाउंदा रहे। कहत नाम दिओ सुनो त्रिलोचन बालक पालन पौड़ी वाले। अंतर बाहर काज गुरु दी चीत सो बारिक राखी ले। जिवें मां दी सुरत बच्चियां दे विच है ते बच्चे मां दे अंदर भावें ढिड्डों जम्मिया ते कहे जी हुण ते जमता, पर सच ये चीज अंदर है। इवें जिवें मां दे अंदर अपनी औलाद दी चीज खिच है, भगतां दे अंदर रब दी बंदगी भावें हाथ पांव कर काम सब, जिन्हों गुरमुखां दी मर्यादा आख्या, जिहड़ी मर्यादा है कमल दे फुल ते मुरगाई वाली, ये मर्यादा है। मुरगाबी जिहड़ी है गिल्ली नहीं होंदी, पानी च चुबियां ला के भी कमल दा फुल जिन्ना मर्जी चिक्कड़ वध जाए, कमल दा फुल उत्ते ही होई उठ जांदा है। कमल दी फुल दियां पंखड़ियां नूं चिक्कड़ छो नहीं सकदा। जैसे जल में कमल निरालम सिद्ध गोष्ठ गुरु नानक साहब। मुरगाई नैसाणे सुरत शब्द भव सागर तरिया नानक नाम बखाणे। भगत नामदेव जी ने इस नाम जपण दी जुगत नूं समझाया, पर जिदे अंदर नाम नहीं है भगत नामदेव ने त्रिग आख्या। त्रिग आख्या पर धन पर दारा पर हरि। भगत नामदेव कहंदे ये 3 निशानियां जिदे अंदर हैगियां वो रब दी भगती कर सकदा है। पहला प्रभु दे नाल प्रेम होए, पराया धन ते पराया तन उहदे मन विच बिल्कुल भी ना हो। ना पराए तन दी भुख होए ते ना पराए धन दी भुख होए। पर तन पर धन पर दारा, दारा कहंदे औरत इस्त्री तन नूं, पर धन पर दारा पर हरि। पर हरि दा मतलब जिदे मन विचों पराया धन ते पराया तन दूर हो जाए ना, समझो उहदे हिरदे विच वाहिगुरू वस गया, उहदे हिरदे च वाहिगुरू। पर धन पर दारा पर हरि ताकै निकट वसै नर हरि। पर अगली गल जो ना भजनते, सारे पढ़ो, जो ना भजनते तिनका मैं ना करूं। कहंदे मैं ते वेखना भी नहीं चाहुंदा जिदे अंदर रब नहीं है। क्यों? क्योंकि रब दा शुकराना हर एक मनुख लई इन्ना लाजमी है जिन्ना लाजमी साह लैना है। साह लैण दी कितनी कीमत है? कहंदे ये कीमत उन्ना चिर तक नहीं पता लगदी जब तक साह दे पैसे ना दे के आईए असीं। सच्ची गल है। चाइना की घटना हुई और जापान की घटना हुई सी करोना दे विच। एक बजुर्ग बंदे नूं जद छुट्टी मिली करोना विच हॉस्पिटल तो ते वो जान लगा तो रोक लिया उन्होंने रिसैप्शनिस्ट ने। कहंदी किथे? कहंदे जी मेरी तो बीमा सी, मेरा इंश्योरेंस सी, मैं किहड़ा बिल देना? कहंदे इंश्योरेंस ते तेरी सी पर इंश्योरेंस विच ऑक्सीजन नहीं सी, तेनू इन्ने दिन असीं ऑक्सीजन दित्ती है। ते कहंदी किन्ना होया बिल? कहंदी तेरा बिल $15,000 होया। वो व्हील चेयर ते बैठा बैठा कंब गया। कहंदी 15? कहंदा $15,000? कहंदे किन्ने दिनां दा? कहंदे 3 दिनां दा। वो कहंदा वाह रब्बा, सारी उम्र तू साह दिते ते एक पैनी नहीं लई तू मेरे तो, कुछ नहीं लिया, कख भी नहीं लिया, ते अज 3 दिन आर्टिफिशियल साह मैनू दिता ते कहंदे इन्नी कीमत हो गई। इस करके जो ना भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूं, जिनका भीतर है अंतरा जैसे पश तैसे कोई नरा। एक औरत हर तरह का श्रृंगार कर ले, 16 श्रृंगार कर ले, पर जे उहदे चेहरे ते नक ही नहीं है, जे नक ही नहीं है तो कीते हुए श्रृंगार कोई कीमत देंगे? प्रणवै नाम दियो ना कह बिना, न सो है 32 लखना। 16 श्रृंगार करे तो 32 लखन उहदे विच होण, पर जे नक ही ना होए, इज्जत ही ना होए, तो इज्जत जिहड़ी है वो प्रभु दे नाम विच है। न सो है 32 लखना। इस गल नूं भगत नामदेव जी ने बार बार आख्या, पर इस एक पार ब्रह्म परमेश्वर की निर्गुण भगती वाल इशारा किया।
और उस निर्गुण भगती वस्ते भैरो कूट शीतला धावै, खर बाहन उछार उड़ावै। हाँ तो एक रमैया लहूं आन देव बदलावन देहूं, शिव शिव करत जो नर ध्यावै, बरद चरै डोरू टमकावै, महामाई की पूजा करै नर सै नार होए अवतरै, तू कहियती आद भवानी मुक्त की बरियां कहाँ छिपानी। सीधी गल की कि मैनू इक्को एक वाहिगुरू चाहिए जिन्हें सारा कुछ बनाया। रोज पढ़दे जप बाणी दे विच केते पौण पानी वेसंतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त कड़िया रूप रंग के, कितना कुछ बनाया उस वाहिगुरू ने, कोई गिनती नहीं। असीं कहने इस धरती दे एक ने, पर किन्नियां धरतियां बनाईयां ते किन्ने इष्ट उन्हें बनाए, उहदी कोई कीमत नहीं। इस करके भगत नामदेव ने क्या, हाँ तो एक रमैया रमया होया रब चाहिदा, आन देव बदलावन दे हूं, होर कोई भगती नहीं। मेरे अंदर एक वाहिगुरू दी भगती है जिहड़ा निर्गुण है, जिहड़ा सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे, एकल माटी कुंजर चिट्टी भाजन है, बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना है। ये वाली भगती दा। इस करके एकल चिंता राख अनंता, एक चेता रख बाकी सब छड़ दे, बहुते आसरे नहीं। इसी करके भाई गुरदास ने कहा सी, दो बेड़ियां ते सवार बंदा डुबदा है। जिहड़ा बंदा दुराहे ते आके खड़ जाए ना, कहे जी मैं इत्थे भी तुरना ते इत्थे भी तुरना है, वो मंजिल ते नहीं पहुंच सकता। मंजिल नहीं भटकदा बंदा, भटकदा रस्ता ही है। इत्थे तुर के एक रस्ते ते अगे 10 मील जाके कहे नहीं नहीं मैं ते गलत आ गया, मैं ते वापस जाके उत्थे जाना सी, वो कदी सिरे ते नहीं पहुंचदा। एक पत्नी सुहागण हो सकती है जिहदा इक्को ही खसम है, दो खसम दो पति रखने वाली नूं सुहागण नहीं कहिंदे। एक शीशे विच वेख के अपनी सूरत सवारी जा सकती है, एक शीशे दे पिछे दूजा शीशा ला दो, कहंदे एक नहीं अपने ही 1000 चेहरे नजर आउणगे ते बंदा सवार नहीं सकता चेहरे। यही गल कही है, जे एक सारी सल्तनत दा बादशाह एक होए ते सल्तनत खुश है, जे बादशाह दो हो जान ते सल्तनत दा बेड़ा बह जाएगा। इस करके हाँ तो एक रमैया ले हूं। और इसी गल नूं भगतना बड़े बड़े किसी इष्ट दी इत्थे कोई हेटी नहीं है, बल्कि एक पार ब्रह्म परमेश्वर दी निर्गुण भगती नूं नमस्कार कीता, जिन्हों क्या भगत नामदेव जी के हुण इस गल नूं बड़े खुले दिल नाल समझियो। भगत जी ने उस सिस्टम नूं बहुत वड्डी लकीर खिंच के छोटा कर दिता, जिहड़ा सिस्टम सच्ची मुची सानू डरावे दे रहा सी, स्वर्ग नरक ते बहिश्त ते दोजख दे। इस करके उन्होंने ये शब्द उचारे कि हिंदू ते तुर्क दोनों का जिक्र करके, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेके ठेगा टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव धौल बल्द चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के घर खाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सोपी आवत देखिया था, रावण सेती सरबर हुई घर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना। इथे कटाक्ष की कीता है कि जेड़े सिर्फ और सिर्फ अपने जात अपनी भगती दा अहंकार करते ने, वो भावें हिंदू होण ते भावें मुसलमान। इस करके क्या कि हिंदू अन्ना तुर्कू काना दूहां ते ज्ञानी सियाणा, जिहदे अंदर ज्ञान दा दीवा बल जे उही सियाणा। इसी करके हिंदू सेव्या देहोरा मुसलमान मसीत, ना मैं सोई सेव्या जै देहोरा ना मसीत। कहंदे देहोरा मसीत दी गल नहीं है, मैं ना मसीत वाल ते ना देहोरे वाल, मेरा देहोरा मेरा मसीत मेरा यह है, जिन्हों गुरु नानक साहब ने पूर्ण रूप से क्या कि काया ही सब कुछ है। और इसी गल गुरु नानक साहब का तुसीं सूही राग का शब्द पढ़ो, महाराज जी ने क्या, मन मंदर तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बसत है बहुर जन्म ना आवा। होर किन्ने भगतां दे उदाहरण ले लिए गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचों, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो धूप दीप नाय बेदा कायो पूजो पाती। कायो दा मतलब काया मेरा यही मंदिर है, मेरी यही मसीत है। इसी गल नूं क्या, ना कछ आएबो ना कछ जाएबो राम की दुहाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत्त है। इस गल नूं भगत पीपा जी ने भी आख्या, कबीर साहब ने भी बाहर की गल नहीं की। उन्होंने क्या, जल के मज्जन जेगत होवै नित मेढक नहावै, जैसे मेढक तैसे ओए नर फिर जो नहीं आवे। पूजो राम एक ही देवा साचा नावण गुर की सेवा। असल ते स्नान ये है। इस गल नूं भगत नामदेव जी ने स्पष्ट किया।
कि धर्म के नाम ते किथे कट्टर ना हो जाए, कट्टरता वाले पासे किथे स्टैगनेशन ना आ जाए। उस सब दे विच ये नहीं कि सवेरे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी है, सारा दिन नमाजा भी पढ़िया, वही गल की तो फिर जाके जुल्म ही किया। जे जाके असी गायत्री मंत्र भी पढ़े तो फिर ठगी ठोरियां तो भी नहीं असी टले। तो फिर भगत नामदेव जी कहते कादा ते असी गुरु के सिख होने वाले 5 बाणियां दे भी नेम निभा ले, पर कसर कोई नहीं छड्डी असी सारे दिन। फिर महाराज भगत नामदेव जी सानू यही गल कहते, जैसे पश तैसे होए नरा। इस गल नूं भगत नामदेव जी ने बड़ा अच्छा हुण अगे होर तुरीए। कल 4 मुढ़लियां साखियां का जिक्र किया। एक छत वाली ओदा गल तो स्पष्ट हो गई भाई ये तो अंदर दा आसरा है, मन दा आसरा। दूसरी साखी जिहड़ी भगत नामदेव जी दी है वह है देवरा फिराउण वाली। तीजी जिहड़ी साखी परताए साखी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में चलती है। वैसे इस तो अलहदा खूह दे पानी भरन वाली भी एक गाथा चलती है। होर कई गाथावां भगत नामदेव जी के जीवन के नाल जुड़ियां हुई चलदियां ने। पर स्पष्ट गल कि साडे मन नूं तरवास किवें आए भगत नामदेव जी के दीदार कीते। गल तो इन्नी है ना कि साडा मन भी टिक जाए किथे, जिवें भगत नामदेव जी का टिकिया रब की भगती दे विच। जिन्हां ने कहता सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई दूजा है ही नहीं। मैनू सारे पासे उही दिसदा, मैनू होर इस तो बिना कोई होर मैनू नजर ही नहीं आउंदा, नदर ही नहीं पैंदा। ते मेरी भगती उस पार ब्रह्म परमेश्वर दे एक रूप दे विच। इसी गल नूं भगत नामदेव जी ने अपने शब्दां दे विच बड़ा खूबसूरत बयान किया कि मैं बौरी हाँ ते मेरा रब मेरा खसम है। मैं बौरी मेरा राम पता। ये रमिया होया वाहिगुरू। रच रच ताको करो शिंगार। ते दुनिया दे हुण दुनिया की कहेगा। देखो एक प्लूटो जिहड़ा पहला ये प्लैनेट सी, हुण ये प्लैनेट नहीं रहा। पहला ये प्लैनेट सी, इनू हुण वर्फ प्लैनेट कहता है कि ये छोटा ग्रह हो गया। पर प्लूटो दे उत्ते कोई असर पिया होएगा? कोई असर नहीं पिया। वो तो मीला करोड़ा मीला दूर ओहो जा गैलेक्सीज दे विच ओहो जाई है, उते तो कोई फर्क नहीं पिया ना। भगत नामदेव कहते भगत ते भी कोई फर्क नहीं पैंदा अगला बंदा की कहता, भावें उन्होंने प्लूटो कह दो तो भावें उन्होंने वाफ प्लैनेट कह दो। जिवें दुनिया के रचाए हुए पसारे ते किसी का फर्क नहीं पैंदा, रब का जो बनाया ओहो जाई है। ते रब की कृपा दे नाल ही रहमत वरतनी है। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोक तन मन राम प्यारे जो वाद विवाद काहू स्यों ना कीजै रसना राम रसायन पीजै। यही गल की जी जान ऐसी बने आई। हुण इहो इहो यही जी खिच किसी दे अंदर है जिस खिच नूं गुरु अर्जुन साहब जी ने गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना आड़ दाम को छीपरो होयो लाखीना। जिस अवस्था नूं भगत रविदास जी ने भी किया नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सहन तरੈ। इन्हां भगतां दी लड़ी दे विच सिरमौर नामदेव जी का नाम रखिया। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सहन तरੈ। कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबै सरੈ। इस गल नूं कौन बयान करेगा? कोई नहीं कर सकता। वाह भगत नामदेव जी सिजदा है। इस सिजदे दे विच भगत नामदेव जी ने कहा कि जिस तरह ये सारी कायनात इउं समझो उस रब की सारी बनाई हुई ये सृष्टि असी सारी ओदियां ते ओ वाहिगुरू एक कृष्ण खसम वाहिगुरू है ते असी ओदी हुक्म विच नच रहे हैं। इसी गल नूं क्या ना ते फिर केड़े इश्क नूं इशनान कराउणा? आनी ले कुंभ भराई ले ओदक ठाकुर को इशनान करो। 42 लाख जी जल में होते ठाकुर पहला काहे करूं। वो वाला इशनान नहीं, इस मन नूं इशनान कराइए। वो अंदर है। जे मन इशनान करे किस ठाकुर नूं इशनान करावांगे? जिहड़ा सब नूं पवित्र करने वाला है उन्होंने कौन करा सकता है इशनान? वो तो अंदर बैठा है। उस अंदर की प्राप्ति दे लई भगत नामदेव जी ने सृष्टि दे सारे लोग जात पात वर्ण भेद तो उच्चे उठ के कि ये बीमारी खत्म होए ते भगत नामदेव जी नूं डरावा दिता मोहम्मद तुगलक ने। ते मां नूं भी बुलाया छोड़ राम की ना भजै खुदाए बिस्मिल गऊं दियो जवाए दा जिक्र किया होया। ते इथों तक भगत नामदेव जी नूं रब ने आख्या कहे ता धरत अकोडी करो। तू दस भगत नामदेव यह है रब की ताकत
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂਹੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਇਲਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ, ਮਾਣ ਦਿਵਾਵੈ ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਵੈ, ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨਾ ਜਗਤ ਆਣ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਵੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਪਰ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂੰਡ ਮਾਰੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੈਂ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਟਗੋਰੀ ਹੈ, ਟੋਂਗਰੀ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਾਰਾ, ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਬਖਸ਼ੰਤ ਤੂੰ ਹਰੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇसी करके धन गुरु रामदास जी ने जद आसा की वार दे, असी गुरु रामदास जी दे छंत पढ़ते हैं आसा की वार च, आखिरी छंत ही है, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया, राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नामदेव मुख लाया। क्योंकि नामदेव जी दे मन विच सिर्फ एक वाहिगुरु गुरदेव दा चेता, उन्हों ही नमस्कार, उन्हों ही सिजदा, ते ओ सिजदा पहल पुरिए पुंडरक बना ताचे हंसा, सगले जना कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा पहला रब आया, आथोन पुरसा दमरा फिर सृष्टि बनी, असगा अस उसगा हरका बागरा नाचा, पिंधी मैं सागरा। जिवें खूह दियां टिंडां दे विच पानी नचदा है ना, इवें सच है कि असी रब दे हुकम विच नच रहे हैं। एडी साडी पाया, केड़ा अहंकार, केड़ी जात दा गर्व, की किस चीज का अहंकार। पानी दियां छल्लां दी तरह साडी जिंदगी है, यह है। ते रब 72 वारी प्रभु दे दीदार 72 वारी होए ने भगत नामदेव जी नूं सारे इतिहासकार लिखदे ने। वो वख-वख रूप दे विच होए ने, वख-वख रूप दे विच होए ने। सो सतगुर जी बख्शिश करने थे, समय की समाप्ति है। 2 दिन आप संगतां दे दर्शन करन दा सुभाग सतगुर जी ने झोली पाया। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ इस पावन दरबार के प्रबंधक जनां दा, और आप संगत तो बिना ये समागम कभी भी पूरे नहीं हो सकते। आप संगतां ने बहुत प्रेम दिता। ये 3 दिनों के लगातार समागम ने, जिहदे विचों 2 दिनों के समागम असी सतगुर जी की कृपा नाल इस पावन स्थान दे विच सतगुर जी के पावन बचनां नूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के आसरे नूं लैंदिआं, भगत नामदेव जी के जीवन नूं विचारदिआं, आप संगतां दी असीसां लैंदिआं कीते ने। मैं बहुत धन्यवादी हाँ इस पावन दरबार के ग्रंथी सिंह साहब, भाई साहब भाई ज्ञानी दविंदर सिंह जी, जिन्हों ने बड़ा सहयोग ते प्रेम दिता है। इस पावन दरबार के प्रबंधक जन ने, मैं उन्हों का धन्यवाद करदा, प्रधान साहब का, सकत्तर साहब गरचा साहब का, उन्हों का धन्यवाद है। इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद है, तो बाबा भुपिंदर सिंह जी का धन्यवाद है, यूके वाले, जिन्हों के सहयोग के नाल ये सालाना समागम होंदे ने। सो मेरी प्रबंधकां नाल अज रजौरी गार्डन गल नहीं हो सकी। सो कल नूं जां आउण वाले समय विच कल नूं ही ये दस दिता जाएगा कि शायद अगला समागम रजौरी गार्डन सिंह सभा जे ब्लॉक होएगा। सतगुर जी रहमत करन। आप सारियां संगतां दा धन्नवाद है। मेरी भुलां गलतियां मेरी झोली पायो। सतगुर जी ने रहमत की। फिर इन्हां समागमां दे विच सेवावां करन दा मौका मिलेगा। और जिन्ने भी इत्थे टीवी चैनल जिहड़े आप संगतां तक पहुँचा रहे हैं, सब का धन्नवाद है। साउंड वालियां दा धन्नवाद। इस पावन दरबार के सारे सेवादारां दा धन्नवाद। गज के फतेह बुलाओ सारे, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।